So actually this is the last session of CNS. Yeah, head neck phase starts from next, so I'll be kind of revising, but before revising, since you didn't allow basal ganglia to be taught, and it's our responsibility to teach you basal ganglia, and I'm going to very fast talk about the basal ganglia. So cerebellum was taught to you, and in that it was told that inside the cerebellum, see, spinal cord, the grey matter is in the center, white matter is around. Same is the true for brainstem. Cerebrum and cerebellum, the grey matter is out, white matter is inside. So actually, originally during the development of the neural tube, grey matter was always inside, like it was in the spinal cord. What happens in cerebrum and cerebellum is that the grey matter from the center migrates to the periphery. Some grey matter which does not migrate to the periphery remains inside as nuclei. In case of cerebellum, it remained as the 4 nuclei. Fantastic. Girls eat D. Donuts. Okay. So F. Fastigial. Girls. Globose. Eat. Emboliformis. D. Dent. So these were the grey matter which has not migrated. Similarly, in cerebrum, some grey matter does not migrate. All grey matter is here on the periphery, but some grey matter does not migrate, and that grey matter forms the basal nuclei. So basal nuclei is the grey matter of the cerebrum which has not migrated. These basal nuclei are the highest centers for automatic associated movements. Highest center for automatic associated movements. Automatic associated movements, while walking, you move your hands. While cracking a joke, you are smiling. Okay, so all these are automatic associated movements. You don't plan it. Okay, and therefore, in the disease of basal nuclei, automatic associated movements stop. That is in Parkinsonism. A person will walk like this, will not move his hand like this, he will have a mask-like face, will not be able to smile. Okay, so like cerebellum had archicerebellum, paleocerebellum and neocerebellum. Here we have 3 things. Archistriatum, oldest basal nuclei, which is the amygdaloid body. Paleostriatum, which is globus pallidus or pallidum. Globus pallidus or pallidum. And neostriatum. Now you must have seen in the section that this is caudate nucleus, this is lentiform nucleus which has 2 parts, globus pallidus and putamen. Barobar? So globus pallidus and putamen were very happily married to each other, but अपन वो आजकल इतना सारा मूवीज आता है ना, एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर, बीच बीच में ऐसा सीरीज आया था एक के पीछे, उसका ऐसा नाम नॉर्मली रहता है बेवफा और कुछ, पति पत्नी और तो वो ये है caudate nucleus. अभी इन दोनों का शादी हुआ है, अच्छे से रह रहे, लेकिन caudate nucleus pairs with putamen. नया जनरेशन है. Neostriatum is caudate nucleus plus putamen.
So they together, so this is called as striatum. This is called as striatum. This is called as pallidum. So henceforth when we refer to pallidum, I will be talking about globus pallidus. Henceforth when I say striatum, I am talking about chordate nucleus plus putamen. आप अगर आपका CNS का बुक खोलेंगे न्यूरो एनाटॉमी का, तो उसमें आपको वापस एक क्लिष्ट डायग्राम मिलेगा ऐसा. तो आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग दैट फॉर यू. Striatum. So what is striatum? Chordate nucleus plus pallidum. What is pallidum? The globus pallidum. Stop writing for 1 minute. 1 minute, and I want you to look here. Striatum receives all the afferents of basal nuclei. तो बेजल न्यूक्लिया के जो सारे एफरेंट्स हैं वो स्ट्राइटम रिसीव करेगा. बेसिक प्रिंसिपल है. स्ट्राइटम रिसीव्स ऑल द एफरेंट्स ऑफ बेजल न्यूक्लिया. इट गिव्स इट टू पैलिडियम एंड इफरेंट्स ऑफ द बेजल न्यूक्लियाई अराइज फ्रॉम पैलिडियम. ये एक बेसिक प्रिंसिपल है. So now what are the afferents? You can start writing. What are the afferents? Afferents, they come from cerebral cortex. They come from cerebral cortex. They come from thalamus. Which nucleus of thalamus? I cannot tell you right now because you have not yet studied thalamus. Okay? There are some nuclei of the thalamus which are connected to corpus striatum. One is median dorsal and another is ventral intermediate and ventral anterior. Mainly ventral intermediate nucleus. And substantia nigra. Substantia nigra. Okay? Substantia nigra कहाँ पे है? मिड ब्रेन. ओके, तो आप इवन नाइगरा फॉल्स में जाओगे तो आप क्या बोलोगे उसको? सब्सटेंशिया नाइग्रा. आपके उधर आपके फादर मदर बोलेंगे देख बेटा देख नाइग्रा फॉल्स. आपने आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज दैट? सब्सटेंशिया नाइग्रा. सब्सटेंशिया नाइग्रा. कौन कौन गए नाइग्रा फॉल्स अभी तक? ओके, ठीक है. नेक्स्ट टाइम जाएगा तो क्या बोलेगा? सब्सटेंशिया नाइग्रा. ओके. कौन से एंड से गए? यूएस एंड से गए. Now, substantia nigra, it is inhibitory. Cerebral cortex, अकलूजकर इकडे लक्ष द्या. Cerebral cortex is excitatory and inhibitory. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, इसके लिए मैंने आप दोनों को इंटरवीन किया. This is cholinergic. This is cholinergic. This is dopaminergic. Cholinergic, acetylcholine is secreted there. Dopaminergic, dopamine is secreted there. Parkinsonism happens due to deficiency of dopamine. So क्या हो रहा है? Cerebral cortex बेजल न्यूक्लियाई को एक्साइट कर रहा है. सब्सटेंशिया नाइग्रा उसको डिप्रेस नहीं कर पा रहा है. सो देयरफॉर देयर आर ट्रेमर्स एंड मूवमेंट्स ऑफ द हेड लाइक दिस बिकॉज कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन बाय द कोलिनर्जिक फाइबर्स ऑफ द cerebral cortex and the depression that should happen by the dopaminergic fibers is not happening. Therefore, you give L-dopa to the patient. Patient becomes normal. L-dopa. So you externally provide dopamine to the patient. Okay?
सो दिस रिसीव्स ऑल द एफरेंट्स। ये इनके साथ उल्टा कम्युनिकेशन भी करते हैं। इट गिव्स टू पैलिडियम। अभी यहां तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन डायग्राम को कॉम्प्लिकेट करने के लिए ऑल्दो ये दे रहा है, ये इधर इसको दे रहा है। ओके, आपको बराबर से जो सिस्टम में लोग जो पैसे खाते हैं ना, कि बाबा ये मेरा आदमी पैसा कलेक्ट करेगा, ये इससे लेगा, ये इससे थोड़ा लेगा, इससे थोड़ा लेगा, फिर ये बॉस को जाके देगा। लेकिन बॉस जब हावरा होता है तो बोलता भाई तू मेरे को डायरेक्टली भी दे ना, थोड़ा सा थोड़ा सा, तो ऐसा भी होता है। सो पैलिडियम ऑल्सो रिसीव्स डायरेक्टली फ्रॉम ऑल दीज थ्री सोर्सेस। सो पैलिडियम का एफरेंस क्या है? ये 3 प्लस स्ट्राइटम, एंड देयर इज वन मोर। सो देयर आर 3 एफरेंट्स फॉर स्ट्राइटम, 5 efferents for palladium, and the fifth one is from subthalamus. Subthalamus 5 efferents। इनके efferents तीन जगह से efferents आ रहे हैं, उनको efferent जा रहा है। एक एक्स्ट्रा efferent है वो पैलिडियम को जा रहा है। पैलिडियम्स के efferent 5, इफरेंस ये 3 को जाता ही है, सबथैलेमस को भी जाता है। एंड देन मेन जो है ना, मेन ये इनके कुछ नाम है, थैलेमस को जा रहा है एंसा लेंटिक्युलरिस। कौन सा न्यूक्लियस था ये? लेंटिकुलेट न्यूक्लियस ना, एंसा लेंटिक्युलरिस, फैसिकुलस लेंटिकुलरिस, ऐसे जो नाम है ना, फैसिकुलस थैलेमिकस। बेसिकली मेन जो है वेंट्रल इंटरमीडिएट न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस को जाता है, बिकॉज थैलेमस का वेंट्रल इंटरमीडिएट न्यूक्लियस कंट्रोल्स voluntary movement, not controls, affects, modifies. So therefore it goes. And then there are descending fibers which go to subthalamus, which go to substantia nigra, which go to red nucleus. Okay, so these are descending fibers. इनके नाम क्या है? Ansa lenticularis, fasciculus lenticularis, together forming fasciculus thalamicus. So this is all about the basal nuclei, the basic things. Afferents received by striatum, striatum gives it to palladium, palladium mainly gives to thalamus. Vedansh, fasciculus lenticularis, ansa lenticularis, fasciculus thalamicus, and it gives to subthalamus. These are called as descending fibers, red nucleus. Highest center for automatic associated movements. Applied neuroanatomy, Parkinson's, when dopamine is not there. So now we are going to revise 2 more topics, and that is thalamus and hypothalamus. Thalamus, those who are planning to draw with me, please dedicate a single huge page for this purpose. Okay? किधर तो कोपचे में अगर ऐसा कोई निकाल रहे तो उसको मेरे क्लास से बाहर निकालो. ओके, चिंगूसगिरी नहीं करने का. So this is thalamus. I am not talking about thalamus का anterior end किधर है, posterior end is called pulvinar, वो तो आपने वहाँ पे देखा रहे. I am just going to directly go to the topic because actually I am revising. A thalamus is divided by a Y-shaped. So thalamus is grey matter and is divided by a Y-shaped white matter. Y-shaped intramedullary lamina. Okay. So मेरा नाम जो Y से चालू होता है वो यही Y है, आपको याद रखना है. कौन सा क्या था, कौन सा शेप था, कौन सा शेप है, Y शेप. Y
यहाँ पे कौन है वाई से नाम चालू होने वाले रेयर पीपल? कोई है? ओके. वाई शेप्ड इंट्रामेडुलरी लैमिना इनटू एंटीरियर ग्रुप ऑफ थैलेमिक न्यूक्लियाई. मेरे साथ रब मत करो, एक सेकेंड. Medial group also called as dorsomedial and lateral. Anterior medial, lateral. Medial also called as dorsomedial. Lateral is further divided into ventral and dorsal. Lateral is further divided into ventral and dorsal. Ventral is further divided into ventral anterior, ventral intermediate, ventral posterior. Ventral posterior is further divided into ventral posteromedial, ventral posterolateral. क्या तू गिव अप मार लगे? कोई गरीब बच्चा है, उसको कोई एक दो पेजेस दे दो. कोई एजुकेशन लोन लिया है तुमने? आज नाश्ता किया? गरीब कार्डियोलॉजिस्ट का लड़का है. वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल इंटरमीडिएट, वेंट्रल पोस्टीरियर. वेंट्रल पोस्टीरियर is further divided into ventral posteromedial and ventral posterolateral. Okay. Dorsal is further divided into lateral dorsal, lateral posterior and pulvinar. Okay. Chalo. So let's go again. This is thalamus. It's divided by Y-shaped. क्लोज कर. नाराज झाला काय तू? Y-shaped intramedullary lamina into anterior group, medial group, lateral group. Lateral divided into ventral, dorsal. Ventral divided into ventral, anterior, ventral, intermediate, ventral, posterior. Lateral divided into lateral dorsal एंड पल्विना. ये वाई शेप्ड इंट्रामेडुलरी लैमिना में भी कुछ ग्रे मैटर होता है, उसके अंदर भी कुछ ग्रे मैटर होता है, और यहां पे भी कुछ ग्रे मैटर होता है. डॉर्सोमीडियल के वहां पे भी कुछ ग्रे मैटर होता है. दीज आर कॉल्ड एज मिडलाइन न्यूक्लियाई. और यहां पे भी होता है, लैटरल के बियॉन्ड भी होता है. दीज आर कॉल्ड एज रेटिकुलर ग्रुप. एक बार ये सब ऐसा मैंने ड्रॉ किया एक क्लास में, तो सारे बच्चे ऐसे देख रहे थे मेरे को. मतलब भाई मैं नहीं बनाया, ये ऊपर वाले का बनावट है, मैं खाली सिखा रहा हूं. इतना गुस्से से देख रहे थे ना. आई स्टिल रिमेम्बर, पूरा मैंने ऐसा सीखा. अब भाई मेरा क्या फॉल्ट है? मैं पोस्टमैन है, जो है भगवान ने बनाया, मैं आपको सिखा रहा हूं. Anterior group, just remember, is connected to limbic system. Anterior group is connected to limbic system. अभी मैं पहले समराइज करता हूँ. लिम्बिक सिस्टम. Dorsomedial group will be giving efferent to prefrontal cortex. 9, 10, 11, 12. मतलब आप जो यहाँ पे बैठे हैं नीट दे के, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी या ऑप्शन बी, 9, 10, 11, 12, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम एनिमल्स, राइट? एनिमल्स का ऐसा रहता है. यू सी एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, their face is like this because this prefrontal cortex is missing. Intelligence is missing. They cannot differentiate, they cannot discriminate what is good, what is bad,
उनका अपना वही कार्यक्रम चालू रहता है दिन भर, खाने का, पीने का, सोने का. ओके, वी कैन थिंक ऑफ हायर थिंग्स. अगर हम भी खाने का, पीने का सोच रहे तो ये निकाल के रखो, बिकॉज एक्चुअली ये निकाल के रखते हैं इन द सेंस that is called as prefrontal laminectomy. The fibers going to prefrontal lobe are disconnected in a cancer patient as a part of palliative care. मतलब वो अगर पेशेंट बहुत स्ट्रेस में जा रहा है तो कभी कभी वो करते हैं प्रीफ्रंटल लोबेक्टोमी बोलते हैं. इट्स नॉट, लोब इज नॉट रिमूव्ड, इट इज डिस्कनेक्टेड बिकॉज पर्सन थिंक्स बाय दिस. तो हमको क्या होता है, जरा से इधर लिम्फ नोड आए तो लोग क्या है, कैंसर तो नहीं है. बट देन व्हेन दैट प्रीफ्रंटल लोबेक्टोमी हो गया ना, तो वो एकदम एनिमल की तरह होता है. वो खाएगा, पिएगा, सोएगा, बस. ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, विच इज डन बाय एनिमल्स. दैट्स द ओनली एक्टिविटी. Humans have to think of something higher intelligence. That's what we talk about. प्रीफ्रंटल लोबेक्टोमी किया ना तो एनिमल की तरह, उसको ट्यूमर आया, कुछ टेंशन नहीं आता है. आपने देखा कुत्ते को कभी कभी कुछ लगा रहता है, मैगट्स भी होते हैं, बट वो टेंशन में नहीं आता है. अपने को कैसे इधर थोड़ा सा पस हो गया तो अपन 5 लोगों को दिखाते हैं, देख रहे येलो लग रहा है क्या, पस है. तुमको क्या लगता है, पस है. तुमको नहीं लगता है, फिर ठीक है. तुमको लगता है पस है. अच्छा, पस है ना, वही मेरे को भी लग रहा है पस है करके. एनिमल्स क्या पस, ये वो जी रहे उसके साथ. ओके, 9, 10, 11, 12. Dorsomedial nucleus, ventral anterior and ventral intermediate motor system, ventral posterior sensory, ventral posterior medial is for face, ventral posterior lateral is for body. क्या टर्मिनेट होता है वेंट्रल पोस्टीरियर लैटरल में? मीडियल लेमिनिस्कस and spinal lemniscus. Sensory, ventral posterior is sensory, divided into 2 parts. Shreya, what are the 2 parts of ventral posterior? Lateral is for and when medial is for. So body के इसमें end होता है medial lemniscus and spinal lemniscus, carrying the sensations of body. वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल पे एंड होता है ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस. क्या एंड होता है? ट्राइजेमिनल. राजपुरोहित, पुरोहित किधर है? अरे हाँ, तेरा पोजीशन छोड़ा तो मैं. अच्छा ठीक, JN1 ठीक है. ओके, वेंट्रल इंटरमीडिएट, सुनो वेंट्रल इंटरमीडिएट. सो ये जो है ना VPL एंड VPM, इसका इफरेंस विल गो टू 312, बरोबर. सेंसरी एरिया 312. तो ये दोनों अगर मोटर है एंटीरियर एंड इंटरमीडिएट, तो देयर इफरेंस विल गो टू 6 and 4, बरोबर. 6 and 4. उनका एफरेंस कहां से आएगा? इनका ये लोग मोटर है तो मोटर रिलेटेड एफरेंस रहेगा इनका, लाइक रेड न्यूक्लियस, डेंटेड न्यूक्लियस, सबस्टेंशिया नाइग्रा, वॉट एवर इज कंसर्न विथ मोटर सिस्टम. So ventral anterior, intermediate is more motor and then anterior. अंदाज आया आपको? anterior intermediate is for motor. So 4, 6 पे जाएंगे. ये कौन से सिस्टम से कनेक्टेड है? लिम्बिक सिस्टम के कुछ पार्ट्स के नाम बताओ. हाँ, क्या बोले? क्या? हिप्पोपोटामस, हिप्पोकैम्पस. हाँ, क्या बात है, हिप्पोकैम्पस. So it is connected to hippocampus. What are the fibers coming out of hippocampus called as? Fornix.
आपने फॉर्निक्स देखा है, आपने हिप्पोकैम्पस देखा है, लेकिन इनका कनेक्शन मालूम नहीं। ऐसा होता है। आपको टाइगर श्रॉफ मालूम है, आपको दिशा पटनी मालूम है, लेकिन उनके बीच में कुछ कनेक्शन। हाँ फॉर्निक्स सर मालूम है ना, हिप्पोकैम्पस हाँ सुना है। अरे सारे फाइबर्स फॉर्निक्स कैरीज फाइबर्स ऑफ हिप्पोकैम्पस, लाइक क्रस सेरिब्राई कैरीज फाइबर्स ऑफ सेरेब्रम। वो उसको पूछ रहा है कौन दिशा पटनी कौन है, ये कौन है, किसके बारे में बात कर। राम बोल रहा है मेरे को भी क्या मालूम कौन, मैं भी पहली बार सुन रहा है, मैं तो पढ़ाई कर रहा था 2 साल से। देन मैमिलरी बॉडी गिव्स मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट। बेसिकली एक दूसरे से बात करोगे ना तो मैं कुछ ना कुछ बड़बड़ करेगा पीछे। मैमिलरी बॉडी गिव्स मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट, ओके। एंड इफरेंट गोज टू सिंगुलेट गायरस वाया सिंगुलम। ये ऑलमोस्ट मैंने सिखा ही दिया आपको, मेरा ये प्लान नहीं था सिखाने का। वापस चल रहा है दोनों का कार्यक्रम। हाँ क्या मेरे को पूछना, मैं इधर है ना, तूने फीस भरा है ना, तो मेरे से पूछना क्या चाहिए तेरे को। हिप्पोकैम्पस वाया फॉर्निक्स, मैमिलोथैलेमिक ट्रैक वाया मैमिलरी बॉडी वाया मैमिलोथैलेमिक ट्रैक, इफरेंट गोज टू सिंगुलेट गायरस वाया सिंगुलम। अभी मैं आपके लिए ट्रैक ड्रॉ करने वाला हूं। हिप्पोकैम्पस से कुछ फाइबर्स फॉर्निक्स से जाते हुए मैमिलरी बॉडी में जाते हैं, फिर वहां से मैमिलोथैलेमिक ट्रैक से एंटीरियर न्यूक्लियस पे जाते हैं, सिंगुलम से सिंगुलेट गायरस में जाते हैं और वहां से वापस हिप्पोकैम्पस में आते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी सर्किट ऑफ पेप्स शायद इसका ए है, शायद पेप्स नहीं, ई है हाँ, पेप्स। एग्जाम में हम बोलते हैं टेल मी द मेमोरी सर्किट, सर आई डोंट रिमेम्बर। मेमोरी सर्किट स्टार्ट्स फ्रॉम हिप्पोकैम्पस, फॉर्निक्स, मैमिलरी बॉडी, मैमिलोथैलेमिक ट्रैक, एंटीरियर न्यूक्लियस, सिंगुलेट गायरस, सिंगुलम, सिंगुलेट गायरस एंड वापस टू हिप्पोकैम्पस। जितनी बार पढ़ोगे उसमें वो फाइनलाइज हो जाता है, ओके। गिव अप मारा। अच्छा डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस, इसके जो कनेक्शंस है ना ये थोड़े से ऑड है, मतलब सब तरह के कनेक्शंस इसको मिलते हैं। जैसे कि एमिग्डालॉइड बॉडी, ST, व्हाट इज ST? स्ट्राया टर्मिनालिस। सो एमिग्डालॉइड बॉडी के सारे फाइबर्स कैरी होते हैं स्ट्राया टर्मिनालिस से। व्हाट इज स्ट्राया टर्मिनालिस? इट इज द इफरेंट बंडल ऑफ एमिग्डालॉइड बॉडी। What is fornix? It's the efferent bundle of hippocampus. Okay? वापस सेम स्टोरी है। लोगों को एमिग्डालॉइड मालूम रहते हैं, लोगों को स्ट्राया टर्मिनालिस मालूम रहते हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं मालूम रहता। एमिग्डालॉइड is part of multiple systems. Limbic, it is part of limbic, so carries olfactory sensations. लिम्बिक सिस्टम पे लेक्चर हुआ है आपका? क्या है लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस? हाँ इमोशंस और हाँ डिप्रेशन। लिम्बिक सिस्टम। गुप्ता जी आप लेट आए, आप आराम से बैठे फुर्सत में, आगे वालों के साथ चर्चा चल रहा है आपका। हाँ लिम्बिक सिस्टम, हिप्पोकैम्पस, ऑल दीज आर पार्ट्स।
Olfactory system is part of limbic system. Why? The function of limbic system is homeostasis. Homeostasis, short term and long term. Short term homeostasis means maintenance of self. भूख लगी तो खाना, सोने का है तो सोने की जगह. शॉर्ट टर्म होम्योस्टेसिस, मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ. एनिमी दिखा तो भागो. लेक्चर बंक किया है और आपको आपके टीचर दिखते तो भागो. मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ. 9:15 बजे जब मैं बाहर निकलता हूं तो आप लेक्चर को आए नहीं है तो दिस इज लिम्बिक सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ. शॉर्ट टर्म होम्योस्टेसिस. लॉन्ग टर्म होम्योस्टेसिस इज मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज. मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज, रेयरिंग ऑफ यंग वंस. ये सब लिम्बिक सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लोअर एनिमल्स. हम लोग ज्यादा उसमें बिकॉज सेरेब्रम हैज टेकन ओवर. बेसल गैंग्लियन अगेन मोर इम्पोर्टेंट इन बर्ड्स. ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट्स. वो लोग नॉर्थ पोल से एक बार निकलते ना, डिंग 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 डिंग, फिर वो रास्ते में 1-2 स्टॉप, फिर भरतपुर. राजस्थान के कौन कौन लोग हैं? तो भरतपुर के बाद नेक्स्ट स्टॉप शिवड़ी हो गया काम, वापस चले. इधर उधर वो दिमाग नहीं लगाते, वो बर्ड्स चलते रहते. अपना क्या अपन डिसाइड करते हैं कि भाई लाइब्रेरी जाने गए, फिर जाते हैं कैंटीन में, फिर कैंटीन से जाते हैं मराठा मंदिर में, फिर आइनॉक्स में, फिर रात को अरे यार अभी तो लाइब्रेरी बंद हो गया, मेरा किताब उधर ही रह गया. वी फंक्शन ऑन सेरेब्रम. तो ये सब में इमोशन तो है. इमोशन इज वन पार्ट, मेमोरी इज वन पार्ट. ऑल्फैक्टरी सिस्टम, पहले हम लोग लिम्बिक सिस्टम का पेज खोलो तो फर्स्ट थिंग दैट इज डिस्क्राइब्ड इज ऑल्फैक्टरी सिस्टम. क्यों? बिकॉज ऑल्फैक्शन, लोअर एनिमल्स में ऑल्फैक्शन हेल्प्स देम टू डू ऑल दीज थिंग्स. मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ, फूड. कुत्ते के सामने तुम ब्रेड डालो, ब्रेड डालो तो खाएगा नहीं. ओके, पहले क्या करेगा? स्मेल करेगा, फिर खाएगा. बरोबर? आप लोग कितने स्मेल करते हो? कैंटीन में जाते हैं, वो वड़ा पाव के साथ चटनी देता है, फिर आप एक बाइट लेता है, भाई अच्छे हैं, कल का है, आज का है, क्या है, क्या नहीं खाना. फिर डायरिया होता है अपने को. फिर ए भाई तू मेरे साथ खाया था, तेरे को भी हो रहा है क्या? अपने को समझता नहीं, वो लोग खाएंगे नहीं. उनको एक बार समझाना बाबा ये प्रॉब्लम हो फूड में, खाते नहीं वो लोग. अपना ऐसा नहीं, अपन खाते हैं, बाद में उल्टी करते हैं, बाद में सोचते हैं कि भाई उससे हुआ या इससे हुआ, क्या क्या खाया दिन भर. वी डोंट अंडरस्टैंड. मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ में सोने से पहले कहीं पे भी कुत्ता सोएगा, वो पहले स्मेल करेगा फिर सोएगा. आप लोग आपके बेडशीट को स्मेल भी नहीं करते, आपकी माँ आके स्मेल करते. ए क्या है बाबा, 6 महीने से धोने को नहीं डालते तुमको चद्दर बेडशीट. मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज, दैट इज ऑल्सो डन बाय ऑल्फैक्टरी सिस्टम. 1 लाख गाय व्हाइट कलर की है और उसमें एक व्हाइट कलर के बछड़े को छोड़ दिया, वो बराबर अपने माँ को ढूंढेगा उसमें. अपन येड़े जैसे कभी कभी वो उसको बचपन में मार्केट में, मालूम है ना, मैं तो क्रॉफर मार्केट में माँ के साथ बचपन में ऐसे ऐसे, बाप ने देखा ये कौन है, पल्लू पकड़ के, अरे आई आई आई. फिर मेरी माँ किधर थी, और किधर है, बच्चा रो रहा है. नहीं तो मैं इधर खड़ा नहीं रहता था, आज उधर ही क्रॉफर मार्केट में कुछ बेचता रहेगा लोग. सो दे उनका लायन कब्स, वो लायनेस के पास कब्स आते हैं, वो पहले स्मेल करते हैं. हाँ अपना है, ले लो. आप लोग शाम को घर पे जाते हैं, माँ करती है क्या? हाँ. So olfactory system is so strong in lower animals, and they do all the functions of limbic system. मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ, रेयरिंग ऑफ यंग वंस. उनका फिक्स पैटर्न है, लायनेस ही कब्स का केयर करेगी,
उस लायन बैठा रहेगा आराम से। आपने कभी देखा है कि वाह वो सारे लाइनेस बोली बाबा तुम थोड़ा बेबी सिटिंग करो, हम लोग जरा किटी पार्टी करके आते? नहीं, वो हमारे इसमें होता है, बच्चे को संभालो मैं बाहर जा रही हूँ, कैसे संभालने का कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ नहीं है, ये हमारे इसमें होता है। तो दे फॉलो, एनिमल्स दे फॉलो द पैटर्न, दे नो हाउ टू रेयर द यंग वंस। जिराफ जो है वो बच्चा का जन्म होते पहले लात मारता है 4-5 ताकि वो उठे और चलने लगे। That all is their set pattern. So limbic system more important in lower animals. Maintenance of self and maintenance of species, rearing of young ones, making them grow. That whole thing is done by limbic system. Amygdaloid body is connected to olfactory. Corpus striatum is also connected to dorsomedial nucleus, which is motor. Then all the lemnisci, which are sensory, they also give lemnisci, they give some fibers. It is connected to hypothalamus via periventricular fibers, because thalamus के नीचे hypothalamus है, बीच में थर्ड वेंट्रिकल, periventricular fibers, वेंट्रिकल के along जाते हैं थर्ड वेंट्रिकल। तो होता क्या गड़बड़ है ये समझो आप। आपके फादर मदर पेरेंट्स आपको बोलते हैं ना, एग्जाम टाइम में अच्छे से खाओ, अच्छे से सो, अच्छे से खाओ, अच्छे से सो, बीमार मत गिरो, बीमार मत गिरो, बीमार मत गिरो। बिकॉज आप जब बीमार होते हो आपके मोटर सिस्टम को कुछ होता है, आपके सेंसरी सिस्टम को कुछ होता है, दैट अफेक्ट्स द डॉर्सोमीडियल ग्रुप, एंड डॉर्सोमीडियल ग्रुप इफरेंट गोज टू 9, 10, 11, 12। इसके लिए लोग जो बोलते हैं ना, नहीं मैं लिख नहीं पाया पेपर बराबर बिकॉज थोड़ा सा इधर दर्द हो रहा था, दुख रहा था, मेरे को फीवर था। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल्फैक्टरी हाइपोथैलेमस है, इसके लिए विसरल, सेंसरी एंड मोटर हैपेंस इन डॉर्सोमीडियल। क्यों ये इंटीग्रेशन जरूरी है? इंटीग्रेशन ऑफ ऑल्फैक्टरी, मोटर, विसरल एंड सेंसरी सिस्टम्स, एंड ऑल्सो इट इज कंसर्न विथ इंटेलिजेंस। ये इसलिए जरूरी है कि आपके पेट में दर्द है तो आप घर पे बैठो, यू डोंट ओवरडू, ओवर स्ट्रेच योर सेल्फ। सो ऑल अदर सिस्टम्स ऑल्सो दे बिकम दिस थिंग। आपको दर्द यहाँ पे हो रहा है लेकिन आप बोल रहे नहीं मैं आज घर पे बैठूंगा, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड। नहीं तो आदमी को फ्रैक्चर है वो भागने लगेगा, ऐसा नहीं होता है, एंड दैट टाइम अपना दिमाग भी नहीं चलता है। इसके लिए हेल्थ को संभालो एग्जाम के टाइम। ओके, सो दैट्स अबाउट ऑल दिस न्यूक्लियर। पल्विनार, यार थैलेमस पे लेक्चर ही हो गया ऑलमोस्ट। पल्विनार ये वो जो है ना सारे, इट इज कनेक्टेड टू lateral geniculate body, कौन सा सेंसेशन आता है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी? मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, कौन सा सेंसेशन? ओके, इट इज कनेक्टेड टू ऑल एसोसिएशन एरियाज, all association areas. So function of pulvinar is gnosis. What is gnosis? Identification of objects given to you is gnosis. तो मेरे हाथ में ये दिया ऑब्जेक्ट, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ? मैं देखता हूँ, अच्छा क्या है, मैं स्मेल करता हूँ। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, इट इज कनेक्टेड टू एमेग्डालॉइड बॉडी, ऑल्फैक्टरी, स्मेल करता हूँ, आवाज करता हूँ आइडेंटिफाई करने की। और एसोसिएशन एरियाज में पूछता हूँ कि ये पहले सेंसेशन आया था, एंड देन आई आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट।
Inability to identify objects is called as agnosia. Agnosia. Inability to identify objects. So main function of pulvinar is gnosis. Are you with me? सरळ बस, सरळ बस, असं ताट. हां, व्हेरी गुड. एक ग्रुप बचा, मिडलाइन, इंट्रालैमिलर एंड रेटिकुलर. मिडलाइन, सुखदा तो ऐसे गुस्से से मत देखा मेरी तरफ, मेरा नहीं है क्रिएशन ये. मिडलाइन, इंट्रालैमिलर एंड reticular. Together they are called as non-specific group of thalamic nuclei. Non-specific group. ARAS क्या है? Ascending Reticular Activating System. Ascending Reticular Activating System. ये बाकी इनको नॉन स्पेसिफिक क्यों बोला है? कौन है तीन नॉन स्पेसिफिक? मिडलाइन, इंट्रालैमिनर एंड बाकी स्पेसिफिक है. आप लोग लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ने को? ऐसे ही जाते हैं लाइब्रेरी में कभी देखने को? लाइब्रेरी देखा है तो उधर ऐसे कपल्स बैठे रहते, कपल्स ऐसे पढ़ते हैं. क्या करते मालूम नहीं, ऐसे दे आर स्पेसिफिक. वो जो लड़का है ना स्पेसिफिक, वो उसी को देखता है, वही लड़की को देखता है, बाकी इधर उधर नहीं देखता, अलाउड ही नहीं रहते उसको. तो ये प्रोजेक्ट करते हैं स्पेसिफिक एरिया, सिंगुलम, 312, 64, 9, 10, 11. ये अच्छे बच्चे. नॉन स्पेसिफिक म्हणजे जी कट्ट्यावर बसलेली मुलं असतात ना, दे प्रोजेक्ट ऑल ओवर. उनका क्या है, कमिटमेंट नहीं है. नॉन स्पेसिफिक उनको क्यों बोला है? बिकॉज दे प्रोजेक्ट ऑल ओवर द सेरेब्रम. इनको स्पेसिफिक क्यों बोला है? बिकॉज दे प्रोजेक्ट ऑन स्पेसिफिक एरिया ऑफ सेरेब्रम. इनको नॉन स्पेसिफिक क्यों बोला है? बिकॉज दे प्रोजेक्ट ऑल ओवर द सेरेब्रम. तो उनका फंक्शन क्या है? दे आर कनेक्टेड टू असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. Ascending reticular activating system. Ascending reticular activating system is the one which is responsible for wakefulness, which is responsible for preparedness. तो सुबह जब आप उठते हो, जो आप कहीं तो ताजमहल के सामने या ब्रुकलिन ब्रिज पे, मैनहट्टन में, कहाँ पे भी रहते हो, और आपको पीछे से आवाज आता है, अर्शी उठो उठो, श्रेया उठो उठो, या श्रेया ऑस्ट्रेलिया सिडनी कहीं, और वहां से जब आपकी आंख खुलती है और आपको समझता है कि आप मीरा रोड में हो, तो ये कहां से होता है? असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेकफुलनेस. सो आप सुबह उठते हो इनकी वजह से. सो ये अभी इतने साल से आप उठ रहे हो, तो फर्स्ट टाइम आप समझो कि हाउ यू वेक अप. Ascending reticular activating system stimulates the non-specific thalamic nuclei and they project all over the cerebrum. उससे हम अरे 8:15 सर ने बोला था 8 बजे शार्प, फिर आप जो भागने को चालू करते हो तो यहाँ से. So this is not only responsible for waking up, दिन भर का जो वेकफुलनेस है, प्रिपेयर्डनेस फॉर एक्शन. और ये सिस्टम जब फेल हो जाती है तो आप
ओके सडनली ये लोग ने सुइसाइड कर दिया सबने. गॉट इट. सो थैलेमस, इतना सब करके मैं अभी राम की सीता कौन पूछ रहा हूं कि थैलेमस का फंक्शन क्या है. ए भाई तू लेट आया ना, जरा आना मदद कर मेरे को, इधर आना थोड़ा सा जल्दी. इतना प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए फटाक. ये जरा सा जमा करना. हाँ सॉरी, क्या है फंक्शंस. अरे बाप, इधर से भी मेरे को बता रहे हो. सिंसियरिटी देखो इसकी. थैंक यू सो मच. सो सेरेब्रम, थैलेमस फर्स्टली, मतलब ये अभी मैं क्रूड इसमें आपको बता रहा हूँ, क्रूड लैंग्वेज में, कि थैलेमस इज काइंड ऑफ अ पीए. आप किसी भी बड़े आदमी को मिलने जाता हो तो बाहर पीए बैठा रहता है. सो इट्स काइंड ऑफ अ पीए टू द सेरेब्रम. फाइबर्स जो भी सेरेब्रम को जा रहे हैं वो थैलेमस में रिले होके जाते हैं. आपने रियलाइज किया कि ये सेंसरी सिस्टम के फाइबर्स है. पहले वेंट्रल पोस्टीरियर था, फिर 312 में जा रहे, फिर इधर लिम्बिक सिस्टम है, वो यहाँ पे आके फिर सेरेब्रम का जो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है सिंगुलेट का, वहां पे जा रहे. 9-1-12 ये यहाँ से जा रहे, 4-6 यहाँ से जा रहे. सो मोस्ट ऑफ द fibers going to the cerebrum, sensory, motor, are relayed in the thalamus first, and then, so you cannot write in the exam it's relayed to thalamus. Some go directly also. Then anterior group is connected to limbic system. Then dorsomedial is connected with higher intelligence, prefrontal. Ventral posterior is connected to sensory. Intermediate is connected to motor. Pulvinar is concerned with gnosis, and non-specific thalamic nuclei are concerned with wakefulness. ओके, इसका लिंक मैं आपको भेजूंगा, डोंट वरी. थैलेमस का लिंक भेजूंगा, यू कैन सी इट एंड वॉच इट अगेन एंड अगेन. ओके, थैलेमस, सेरेब्रम में अगर कुछ डैमेज हो गया और थैलेमस इंटैक्ट है तो आपको पेन फील होगा कि नहीं होगा. ये लोग गप्पे मार रहे. सुखदा, हाँ मेरे को पूछो. नहीं तो तुम्हारा एप्रन किधर है, पहला क्वेश्चन. हाँ ठीक है, हाँ बोल क्या है. Ascending reticular activating system. Okay. So a person will be able to feel the pain, but may not be able to locate it properly. मतलब मेरे पीठ में दुख रहा है, exactly I may not be able to pinpoint यहाँ दुख रहा है या यहाँ दुख रहा है. For that the cerebrum is needed because pain fibers are intact, but pain cerebrum तक, मतलब ब्रेन तक जा रहा है, थैलेमस तक जा रहा है, बट सेरेब्रम तक जाना जरूरी होता है टू लोकेट द पेन. इसके लिए थैलेमिक सिंड्रोम में भी दुखता है एक आदमी को, लेकिन कहाँ दुखता है समझ नहीं. थैलेमस गेट्स अफेक्टेड. ओके, आई विल नॉट स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक एट दिस जंक्चर. ये जो सैटरडे को आपको सिखाया गया और आपने प्रोटेस्ट मारा कि 4 बज गए, 4 बज गए, 4 बज गया. आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक. सो टुडे वी डिस्कस्ड ऑलमोस्ट मेनी थिंग्स ऑफ दिस, राइट. 11 and 12 इज ऑन द इनर साइड. सो इसका फंक्शन भी आपको अभी मालूम है. यहाँ पे 8 होता है, 8 प्री फ्रंटल आई फील्ड. सो मूविंग बोथ द आईज, conjugate movement. Okay, very good. 4 और 6 में डिफरेंस क्या है? 4 is प्राइमरी मोटर और 6
तो मतलब क्या, इसके लिए मैं ये लास्ट का 5 मिनट्स इसके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ. कौन बोला क्या? हाँ, क्या बात है. क्या नाम है तुम्हारा? पवन. काय कोणत्या शाळेत शिकलास? व्हेरी गुड. सो I will come back to what is. So in the precentral gyrus is 4 and in the frontal lobe beyond that is 6. 6 is premotor. 3, 1, 2 primary sensory. And what is 5, 7? Association sensory areas. Association मतलब सेंसेशन वहां पे स्टोर होता है. सेंसेशन वहां पे स्टोर होता है. आपको किसी ने कान के नीचे बजाया, पहला सेंसेशन जाएगा 312. 312 विल कंसल्ट 5 and 7. ये क्या था ये सेंसेशन? फिर आपने बहुत बार खाया है, बोले वाह वो मारा तेरे को कान के नीचे बजाया, वो सेंसेशन है क्या? अभी डिपेंडिंग अपॉन सामने मारने वाला लड़का है या लड़की है और मार खाने वाला कौन है. तो लड़का है और लड़के ने लड़के को मारा, सपोज सिनेरियो. फिर वो सब कंसल्टेशन, लिम्बिक एरिया क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है करके वो 6 ये अल्टीमेटली सब डिसीजन होके 6 में जाता है कि भाई अपने को भी उसको मारने का है. प्रोग्रामिंग, ये वर्ड उसने बोला, प्रोग्रामिंग द मोमेंट. फिर वो 6 जो है वो बोलता है अभी तो लेफ्ट हैंड से उसका कॉलर पकड़ेगा, राइट हैंड पीछे जाएगा और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आके उसके गाल के ऊपर चाटा मारेगा. अभी आप मुझे बोलो 17 क्या है? अरे प्राइमरी. 18, 19 क्या है? तो उसमें स्टोर किया जाता है. लड़की लोग याद रखो, मेरे हर एक लेक्चर में, आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग में भी सुनोगे कि जब कोई लड़का आपके सामने आके बोलता है लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, मतलब तेरे 17, 18 और 19 में प्रॉब्लम है. 17 से तू देख पा रहा है मुझे और तेरे को याद नहीं है, बिकॉज जो भी आप देखते हैं कहां पे स्टोर होता है? 18 और 19, 18 and 19 एसोसिएशन एरिया, वहां पे स्टोर किया जाता है. तो अगर कोई आके बोलता है लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, प्रॉब्लम किधर है? 18 and 19. उसको इमीडिएटली डायग्नोसिस देने का, मतलब तुम्हारा डायग्नोसिस है कि तुम्हारा 17 इंटैक्ट है, 18 और 19 में प्रॉब्लम है. 44, 45 ब्रोकाज एरिया, बड़बड़ जो आप लोग करते रहते ना, इसकी वजह से. 41, 42 प्राइमरी ऑडिटरी एरिया. तो आप जो सुनते हो उसका असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उसका एक्टिवेट करो. वेरी गुड. 41, 42 जो सुन रहे हो वो स्टोर होता है. कहां पे स्टोर होता है? ये सुनता है, दिस इज प्राइमरी. स्टोर कहां पे होता है? ओके, दैट इज एसोसिएशन ऑडिटरी. तो यू गॉट इट. सेंसेशन गोज टू प्राइमरी, स्टोर्ड इन एसोसिएशन, वहां पे स्टोर होता है. जैसे हम एग्जाम में आपको पूछते हैं व्हाट इज अल्नार पैराडॉक्स, फिर आप बोलते सर 1 मिनट मैंने सुना है सर, सुना है. वन सेकंड. हम लोग बोलते नेक्स्ट. नहीं सर 1 मिनट. नहीं, वर्निकेज एरिया अगर सुना है तो वर्निकेज एरिया में जाएगा. ओके, और वहां से फिर वो ब्रोकाज में आना चाहिए. ओके, so this is Broca's area. So when Broca's is damaged, that is called as motor aphasia. मतलब मैं आपको पूछता हूं what is ulnar paradox? तो आपको बोलने को आ रहा है, बट मालूम है आपको, बट आप लिख के दिखा सकते हो मुझे. हाँ, आई नो, यू नो. मोटर अफेजिया. ओके, बट वर्निकेज एरिया डैमेज होता है तो क्या होता है? सेंसरी अफेजिया. मतलब मैं आपको पूछूं व्हाट इज अल्नार पैराडॉक्स,
अब बोलेंगे सर रूट वैल्यू ऑफ मीडियन नर्व इज C4, C5, C6, C17। और मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या आंसर दे रहा है? मतलब ये जो आपको होता है ना एग्जाम में, सब लोग जो आप करते हो ना, व्हाट इज दैट? सेंसरी एफेसिया। क्वेश्चन क्या पूछा है, आंसर क्या दे रहे? और जब दोनों डैमेज होता है मतलब ग्लोबल एफेसिया, वो क्वेश्चन भी नहीं समझ पा रहे और बोल भी नहीं पा रहे। फिर हम बोलते नेक्स्ट। So that is global aphasia. Thank you so much.